situation is that I'm not able to stand properly because of the wind speed. So you can just see right now where I am at Gateway of India, and the wind is actually really high, and we are not even able to stand properly. So it's that kind of speed that we are talking about, and you can see the sea is completely rough. It's absolutely rough sea out here, and at Gateway of India, so we are advising everyone to just stay indoors and not at all to venture in and around seashore. That has also been the advice by the BMC as well. But since afternoon is when in fact the wind has in fact started blowing really bad, and the rain is there. It's high rain also in part of Mumbai. We have seen that there are trees have fallen across Mumbai, but it is the wind that is it's really crazy at this moment. And as IMD has predicted, somewhere around 90 kilometers to 100 kilometers from Mumbai, that is the wind speed that we are talking about. And this cyclone is expected to go to Gujarat sometime in the evening today, but in the afternoon it is impacting Mumbai and around Mumbai as well. And the government has said that they have evacuated people in the coastal region. So basically the government has said around 12,000, over 12,000 people from off the coast have been evacuated, because yes, it is absolutely difficult to for anyone to be around coast right now. And the government has said that over 12,000 people have been in fact evacuated already, and even in Mumbai, if necessary, the evacuation plan is also included. And yes, even from Mumbai, the people living near Khardana, Bandra, that side have actually been evacuated. You can just see the visuals, let the visuals right now, because they are absolutely rough sea out there. This is the Gateway of India where I am right now. Nobody is allowed to go into the sea. The fishermen have been given advice not to be in the sea at all. And since yesterday, the fishermen have in fact come to the coastline, and people living off the coast, they have also been evacuated. And the situation is going to be like this. The IMD has predicted heavy rain for Mumbai. This is more likely to continue for the next few hours. And the cyclone, which in fact it's very severe cyclonic storm is what the IMD has said, that is moving towards Gujarat. अरब सागर में लक्षद्वीप से शुरू हुआ ताउते चक्रवाती तूफान तेज गति से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, और ये किस तरह बढ़ रहा है और इसमें भारतीय तटरक्षक दल जो है उसकी क्या भूमिका है, कैसे वो मॉनिटर कर रहे हैं और कैसे पूरा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, खास करके समंदर में जो भी हलचल हो रही है उसके प्रति, ये जानने के लिए हम आए हैं इस समय मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई में। और ये उसका रेस्क्यू सेंटर है जिसमें ये मॉनिटरिंग हो रही है। देखिए पूरा ये बड़ी स्क्रीन है जिसके जरिए देखा जा रहा है कि अब समय कहाँ पर क्या पोजीशनिंग है तूफान की, और जो शिप हैं वो सब कहाँ पर हैं, उनकी क्या पोजीशनिंग है, और कहीं कोई डिस्ट्रेस कॉल तो नहीं है या किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं है। कैसे पूरी मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन चल रहा है ये जानने के लिए हम बात करते हैं महाराष्ट्र कोस्ट गार्ड के कमांडर प्रशांत शर्मा जी से। और सर ये बताइए कि ये जो आपका कंट्रोल रूम है इसमें कैसे मॉनिटरिंग हो रही है, क्या क्या आप लोग देख रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि अभी तूफान की पोजीशनिंग क्या है, मुंबई से कितना दूर है और किस गति से आगे बढ़ रहा है? एज ऑफ नो, जैसे आपने पूछा, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये जो साइक्लोन है ये इस वक्त पालघर और मुंबई के बीच में है, यानी मुंबई से आगे बढ़ चुका है और इसका डिस्टेंस जो है लैंड से वो लगभग 89 नॉटिकल माइल्स पे है, और इसका जो जनरल डायरेक्शन मूवमेंट का है जो कि प्रिडिक्टेड ट्रैक है वो लगभग नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन में है। तो लाइकली चांस है कि ये गुजरात के साउथ कोस्ट में ऊना के पास में हिट करेगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो साइक्लोन होते हैं जो सी में उठते हैं उसका जो बीच का पोर्शन आप देख रहे हैं डार्क वाला, दैट इज आई ऑफ द स्टॉर्म। उसके चारों तरफ ऑलमोस्ट 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है वो अफेक्टेड होता है।
उसमें बहुत तेज हवाएं चलती हैं, क्योंकि वही एयर को अंदर सक कर रहा है। जो भी गर्म हवा ऊपर उठ रही है उसकी वजह से जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है आई में, उसकी वजह से उसको फिलअप करने के लिए बाहर से हवा खींचती है। तो जो बाहर का पोर्शन आप देख रहे हैं ज़्यादा जोर से हवा घूम रही है, दैट इज़ द डेंजरस पार्ट ऑफ द साइक्लोन। तो अब चूंकि मुंबई से आगे बढ़ गया है, तो हम क्या ये मानकर चलें कि कुछ घंटों के बाद शायद ये असर खत्म हो जाएगा, बारिश रुक जाएगी, हवाएं रुक जाएंगी, अब आगे की तरफ बढ़ेंगी, गुजरात की तरफ? या डेफिनेटली जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहेगा इसका असर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ घंटों तक, बिकॉज जैसे मैंने बताया इसका जो डेंजरस सर्कल रहता है और जो इसका इफेक्टिव जोन होती है वो काफ़ी लंबी होती है, तो इट विल टेक सम टाइम। देखिए, परसों से जब से हमें अलर्ट मिली है, हम हर आधे घंटे 1 घंटे में खुद बात कर रहे हैं आईएमडी से, और मेरी भी लगभग हर आधा घंटा 1 घंटा के बीच में आईएमडी के जो नंबर 1 बॉस हैं उनसे बात होती है। तो कल रात से हम सारी रात से अलर्ट पे हैं, और अभी अगर आप हमारी स्क्रीन देखें सामने, स्क्रीन लाइव स्क्रीन जो है वहाँ पे अभी जो साइक्लोन है इसका जो एपिसेंटर है अभी 150 किलोमीटर ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुंबई है। इट इज़ 150 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुंबई, और अभी लगभग ये मुंबई के को फेस कर रहा है, बट 150 किलोमीटर असाइड। एंड इसी कारण अभी पिछले 11 बजे से लेकर अभी पौने 8 बजे तक बड़ी हैवी बारिश हो रही है। परंतु आप देखें हमारे पास ये 5000 कैमराज हैं, और 5000 कैमराज से हम पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं फ्लडिंग नहीं है, थिंग्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। एंड अभी रफली 1:30 बजे के बाद में विद नेक्स्ट से 45 मिनट्स मुंबई की इंटेंसिटी चली जाएगी, और 3 बजे तक हमारा एक्चुअली मुंबई नॉर्मल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 3 बजे तक चीज़ें सुधर जाए। हम देख रहे हैं कि बांद्रा वाली सीलिंग को भी बंद कर दिया जाएगा, एयरपोर्ट पर भी 2 बजे तक ऑपरेशंस बंद है। कई लोगों को हमने कोविड सेंटर से भी पिछले कुछ दिनों में शिफ्ट किया गया है। ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लिए गए हैं उसका किस तरह से फ़ायदा हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है? देखिए, ऑल्दो परसों से आईएमडी बोल रहा है कि बम्बई को से खतरा नहीं है, परंतु हम चांस नहीं ले रहे, इसलिए हमने परसों ही हमारे 580 कोविड जंबो हॉस्पिटल के पेशेंट्स को हमने जो स्ट्रक्चर्स हैं प्रॉपर, जैसे कि 7 हिल हॉस्पिटल, केएम, नायर, साइन, नेस्को, वहाँ हमने शिफ्ट कर दिया था एज ए मैटर ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन, भी एक भी व्यक्ति को कोई इशू निर्माण ना हो। और उसके अलावा अभी भी जो हमने सीलिंग कुछ घंटों के लिए बंद किया है, एयरपोर्ट 3 घंटों के लिए बंद किया 2 बजे तक, उसका एक ही कारण है, इट इज़ प्रिकॉशनरी। ऐसा नहीं है कि हमें बंद करना पड़ा, वो हमने खुद बंद किया है प्रिकॉशन लेने के लिए। और 3 बजे के बाद में एक बार जब ये साइक्लोन थोड़ा नॉर्थवर्ड और मूव करेगा 3 बजे तक, और लगभग ये थाना डिस्ट्रिक्ट का जो पालघर, बोईसर, तारापुर एरिया है उसको फेस करेगा, तब तक मुंबई नॉर्मल हो जाएगा। जी, आखिरी सवाल ये होगा सर कि हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर पेड़ गिरे हैं, कुछ जगहों पर जल जमाव की भी खबरें आ रही हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? शहर अभी फिलहाल सुरक्षित है, क्या कुछ हो रहा है, क्या देखिए, हमने लास्ट ईयर से एक SOPs बनाई हुई हैं कि जो हमारे 1 लाख कर्मचारी हैं कौन क्या करेगा। आप देखते हैं कि पिछले साल ऑलमोस्ट 1000 पेड़ गिरे थे और शाम तक हमने सब क्लियर कर दिया था। आज भी अभी तक जो पेड़ गिरे हैं आप देखेंगे कि शाम को 6 बजे तक आपको एक भी पेड़ गिरा हुआ नजर नहीं आएगा, सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल? एब्सोल्युटली। Right now I am at Marine Drive. I am on a flyover, and as you could see, the speed of the wind is the wind is at a very high speed. The IMD has predicted a speed which will go up to 120 kilometers per hour, and that's the reason what you will see is the sea is getting rough as we speak. Now remember that the high tide in Mumbai begins at 3:30 p.m. and the sea is already very rough, as you could see. Few minutes ago we also witnessed the waves of the sea coming as high as on this bridge ahead. So this is the current condition, and that's the reason people were asked not to go near the seashores as well as stay away from it. Even now if you will see the sea is getting rough as we speak. You could see these visuals and imagine that if it is getting as high as on this flyover, you can imagine what would be the actual condition inside, and that's the reason people have been asked to stay away from the seashores. However, we could still see that some people are coming over here. The BMC has also appealed people to stay away. Now remember that the speed of the wind is how much you could see in these visuals as well. So the effect of the cyclone can be seen
in Mumbai, and its effect on the sea can be seen. And this is happening at a time when it was predicted that by 3:30 things would get normal. But as of now, what we can say is it is raining, and the speed of the wind is getting more faster as we speak, which is also impacting the sea at the Marine Drive. So these are the visuals of the Marine Drive. We are leaving you with this, and you could see and understand that how much is the impact of the cyclone on the sea as well as on Mumbai. In Mumbai, with camera person Rajendra Dayalkar, Sohit Mishra, NDTV.